تو وہ بولا اس سوال کے جواب کہ تم اسی وقت متحمل ہو سکتے ہو جب تمہارے دماغ میں ایک ہاتھی کی وسعت پیدا ہو جائے۔ میں نے سمورال سے دوبارہ اپنے جنون کی تکرار کی، کیونکہ اس ذکر میں مجھے ایک لذت محسوس ہوتی تھی۔ اس نے کلام بند کر دیا اور میں نے اس کی عبادتگاہ کا ہر چیز کا بانظر جائزہ لینا شروع کر دیا۔ میں طلسمی کڑیا کے پاس گیا اور میں نے اس سے فرمائش کی، کیا اس جلتے ہوئے تیل میں اس کا عکس زیری نظر نہیں آ سکتا؟ نہیں، کاش یہ ممکن ہوتا۔ سمورال نے حسرت سے کہا، تمہارا یہ تلس مجھے بہت پسند آیا۔ عظیم سمورال اتم، مجھے اس کا علم سوچنے میں بخل سے تو کام نہیں لوگے، یہ تمہارے انہاق پر منحصر ہے، میں تمہیں کچھ سکھانے میں دلچسپی رکھتا ہوں۔ سمورال کی زبانی یہ بات سن کر میں نے بے چینی سے کہا، یہ میری سعادت ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے پیر کا انگوٹھا چوم لیا۔ تمہارا ساتھ اور سہارا رہا تو میرا اضطراب ختم ہو جائے گا۔ اتنی وحشت انگیز باتیں سن کر میں کوئی دا نہیں کر سکتا، لیکن میں جمال سے زیادہ مستعد ہونے کی کوشش کروں گا۔ یہ کڑیا، یہ عصا میں خود کو اس عبادتگاہ میں رکھے ہوئے نوادر کے استعمال کا اہل ثابت کروں گا۔ میں خط غلامی تحریر کرتا ہوں۔ میں یہاں کچھ اور کہنے آیا تھا۔ سمورال نے آج پہلی بار مجھ سے اتنی طویل اور اپنائیت کی گفتگو کی تھی۔ میں نے اسے اعتماد میں لینے کے لیے زبان و بیان کی ساری قوت صرف کر دی۔ سمورال نے مجھے عبادتگاہ میں کسی روک ٹوک کے بغیر آنے کی اجازت دے دی تھی۔ میں اس کے طلسمی کڑیا پر جھکا ہوا تیل کے مد و جزر اور ارتعاش میں جزیرہ توری کے مختلف مناظر دیکھ رہا تھا۔ سمورال میری ہر فرمائش پوری کر رہا تھا۔ اس طرح میں کڑیا کا نظام جانے کا خواہش مند تھا۔ آخر میں نے اسے سے کہا، میں سرنگا کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ سمورال کے چہرے پر کھنچاؤ سا پیدا ہوا۔ اس نے اپنے ہاتھ کا عصا تیل میں ڈال کر اسے گھمایا اور مختلف طریقوں سے تیل کی سطح پر کوئی منظر ابھارنے کی سعی کی۔ اس کی پیشانی عرق آلود ہو گئی۔ خاصی دیر تک طلسمی کڑیا میں لکڑیاں جلانے، آگ تیز کرنے اور متعدد عمل دہرانے کے باوجود سرنگا کا چارہ نمودار نہیں ہوا۔ مجھے سمورال کی ناکامی پر مسرت ہو رہی تھی اور میں سرنگا سے وابستگی پر فخر محسوس کر رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ سمورال کیوں ناکام ہے۔ میں نے کہا، او مقدس کاہن، میں اجازت چاہتا ہوں۔ میں دوبارہ اپنی منتشر قوت یکجا کرنے کی کوشش کروں گا۔ تمہارے مشورے پر میں نرمس کا شگفتہ سراپا اپنی آغوش میں سمیٹ لوں گا، کیونکہ یہ اس کا عطیہ ہے جو سب سے طاقتور ہے، جو مطلق العنان ہے۔ بڑی طاقت چھوٹی طاقتوں سے یقیناً سوا ہوتی ہے۔ تمہارے معنی خیز کلمات سے میں اپنا وزن کر رہا ہوں۔ میں نرمس کو اتنی زور سے بھینچوں گا کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں۔ ادھر تم اپنے دل اور اپنی عبادتگاہ میں میری نشست کی گنجائش پیدا کرو۔ سمورال طلسمی کڑیا میں الجھا ہوا تھا۔ عبادتگاہ میں کثیف دھواں در و دیوار پر چھایا ہوا تھا۔ تم نہیں جا سکتے، اس نے چونک کر کہا۔ ٹھہرو۔ کڑیا سے ہٹ کر اس نے پانی کے ایک برتن میں اپنا ہاتھ ڈال کر چاروں طرف پانی چھڑکا۔ دھواں لمحوں میں صاف ہو گیا۔ پھر اس نے جارا کاکا کی کھوپڑی دروازے سے ہٹائی اور مجھ سے کہا، تم جا سکتے ہو کاہن اعظم۔ سمورال سے مزید سوال و جواب کا موقع نہیں تھا۔ وہ کچھ مقدر سا نظر آ رہا تھا۔ اس کے غار سے نکل کر میں نے اطراف میں دیکھا۔ درختوں نے اندھیرا اور دبیز کر دیا تھا۔ سمورال سے آج کی ملاقات گزشتہ ملاقاتوں سے مختلف تھی۔ اس نے اپنی عبادتگاہ ماورائی طاقتوں سے روپوش کر کے مجھ سے رازدارانہ باتیں کی تھیں اور انگروما کے حقائق کرید کرید کر پوچھنے چاہے تھے۔ میں نے اسے مکمل تفصیل سے آگاہ نہیں کیا تھا، اس لیے کہ میں انگروما کے ذکر سے پہلے ہی سمورال کے اضطراب کا اندازہ لگا چکا تھا۔ اس ملاقات سے سب سے بڑا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ میرے ذہن کی باکتی ہوئی روح میرے قابو میں آ گئی تھی۔ سمورال کے انداز بیان نے مجھے بعض نازک اور حساس باتوں کی طرف توجہ دینے کا موقع فراہم کر دیا تھا۔ اس طلسمی نظام کا خاکہ میرے ذہن نے ترتیب پا رہا تھا اور اب میں اپنی کوتاہیوں اور خوش اعتقادیوں کے بارے میں کوئی معقول رائے قائم کر سکتا تھا۔ یوں ہم سب لوگ ایک دوسرے کے حریف تھے اور یوں ہم سب لوگوں کو اس کے سحر حسن نے جکڑ رکھا تھا۔ میرے عزائم نہ اس وقت اتنے پست تھے کہ میں ٹوٹ کر زمین پر لیٹ جاتا اور نہ اتنے بلند کہ مجھے اپنے بازوؤں کی مچھلیاں تڑپتی محسوس ہوتی۔ میں ایک متدل شخص تھا اور مجھے نرمس کا کشش انگیز بدن اس سمت راغب کر رہا تھا جہاں میں اسے چھوڑ کر آیا تھا۔ بستی سے دور اس درخت کے نیچے وہ وہاں نہیں تھی۔ میں نے اسے آواز دی، اے چمن زار قابلہ کی کلی محترم نرمس، تم کہاں ہو؟
मेरी निगाहों के सामने जलवा गिर हो जाओ, देखो कि मेरी निगाहों में शर्मसारी और मेरे कल्ब में बेकरारी है। आओ कि मैं अपने तशन्नुज और इस्तरार पर मलामत कर चुका हूँ। आओ कि मेरा बदन जल रहा है। इसके खीरा कुन वजूद के जाहिर होने में देर हुई तो मुझे अपने जलते हुए बदन में सर्दी सी महसूस होने लगी। वो नाराज तो नहीं हो गई? कहीं वो कसरा काबिला में वापस तो नहीं चली गई? मैं इसे आवाज़ें देता रहा और अपने गुज़िश्ता रवैये पर नदामत का इजहार करता रहा। मेरा अगला खुश्क होने लगा। आखिर सुबह का जब से कुछ देर कबल वो नमूदार हुई। नरमज़ मैंने हाँपते हुए कहा, बाज़ औक़ात मुहज़्ज़िब दुनिया के रिश्तों और आदाब से मेरा इल्हाक हो जाता है। मैं ये भूल जाता हूँ कि एक वसी समंदर दरमियान में है। मैं काहिन आज़म समोराल के पास गया था। इसने मुझे एहसास दिलाया कि मैं किस जगह खड़ा हूँ और मेरा मकाम किया है। मैं सरकशी विस्रिशार का मुजाहरा करते हुए नरमज़ को बस्ती में ले आया। बस्ती की गलियों में रात भर के थके हुए मखमूर लोग औंधे पड़े थे। उन्हें अपने जिस्मों का होश नहीं था। नरमज़ मेरे साथ मेरे झोंपड़ी नुमा मकान में आ गई। नरमज़ को कोई देख नहीं सकता था, इसलिए सरिता की मौजूदगी का कोई खौफ नहीं था। मैंने इससे कहा कि मैं बुलंद आवाज़ में कोई बात नहीं करूँगा। इसने कहा कि तुम सिर्फ होंठ खोलना, मैं उनकी हरकत से मानी अखज़ कर लूँगी। मैंने इससे आहिस्तगी से कहा, यहाँ प्याल के नर्म व नाजुक बिस्तर पर मेरे पहलू में दराज हो जाओ। इसने जवाब दिया है, तुम्हारी शुजात और जिन्नों के जो तज़किरे मैंने सुने थे वो बीच है। वो मेरे दिल से करीब हुई। सुबह में वक्त कम था। जब आफ़ताब ने अपनी किरणें ज़मीन पर तकसीम करनी शुरू की और मेरा खुमार टूटा तो मैं ज़्यादा तनदही से अपने बारे में सोचने लगा। सरंगा कहता था कि हमें मुहज़्ज़िब दुनिया में वापसी के इम्कानात हमेशा सामने रखने चाहिए। सरंगा के पास एक अजीम देवी थी, एक छोटी सी मूर्ति जो एक मुकम्मल औरत की शक्ल इख्तियार करके नाकाबिल यकीन कारनामे सरंजाम दे सकती थी। वो यहाँ अपनी मूर्ति की सहरकारियाँ छप नहीं सकता था और इसीलिए कई बार मतूब करार दिया जा चुका था। समोराल ने जिस अंदाज से बाज़ हक़ाइक़ इशर बयान किए थे वो रह रह कर मेरे ज़हन में फ़िशार पैदा कर रहे थे। एहतियात, इतदाल, दूरंदेशी इस मुलाकात का माल था। यहाँ बात करना, लब हिलाना भी मुश्किल था। रोशनी की पर असरार लकीरें, नादीदा सुराग रसां हर समत लगे रहते थे। सरंगा प्राण की कड़ी नज़र थी और एहतियात का तकाजा था कि मैं सरंगा के गार में इससे मशवरे लेने के लिए कम से कम जाऊं। हालांकि ऐसे आलम में सरंगा की ज़ात मेरे लिए एक बड़ा सहारा थी। तारीख बर्रे आज़म में इतने मसाइब झेलने के बाद कम अज़ कम जिंदा रहने का आसरा ज़रूर हो गया था। जिसे ज़िंदगी का शौक़ हो, इसके लिए ये बात किया कम है, वो जिंदा है और ज़िंदगी का शौक़ के नहीं होता। मुझे भी था। मैं यहाँ इस वक्त तक सुर्ख रू था जब तक जजीरा तोरी में आसपास के इलाकों में मेरे मुकाबले का कोई और शख्स पैदा नहीं हो जाता। कनात में अमान है, कनात में ज़िंदगी है, मगर मौत ज़दा ज़िंदगी। जजीरा तोरी में महबूस होकर मैं अपने आप को तवील अलमेआद ज़िंदगी की ज़मानत दे सकता था, लेकिन औरतों, शराबों और ग़ुलामों पर काने हो जाना मेरे मिजाज को रास न था। अब भी मेरे दिल में इस्तिराब का एक शोला रोशन था, एक मुबहम उम्मीद, शायद संगलाख चट्टान सब्ज़ा उगिल पैदा हो जाए। एक बीना गुस्सा जो कनाअत को मौत समझता था और हर तरफ हा होकर के शोर मचाने को उकसाता था। एक खफीफ इम्कान, शायद इस हरकत और ताकत में वापसी की कोई सूरत निकल आए। शायद मैंने अपनी उफ्ताद तब और कल्बी कैफियतों की वजाहत कर दी है। सुबह होते ही मैं अपने ठिकाने से उठा और नरमज़ से कहा कि वो मुझसे दावर ना रहे। नरमज़ ने खुश अदाई से मेरी ख्वाहिश पर हर वक्त नमूदार होने का वदा किया और नज़रों से ओझल हो गई। इसके जाने के बाद मैंने फिजारू और जार में को तलब किया। रात भर जश्न में डूबे रहने की वजह से उनकी आंखें बोझल हो रही थीं। मैंने अपने लहजे में वज़न पैदा किया और बोला, मुइज़्ज़ार में और फिजारू, तुम्हारे सरदार जाबिर बिन यूसुफ ने तोरी के दूसरे कबीले के सरदार शोइल्ला को शिकस्त दी है और वो अब दोनों कबीलों का हुक्मरान है। तुम्हारा उसरदार महसूस करता है कि मुक़द्दस अक़ुबला की खुशनुदी के लिए सिर्फ यही मनासिब काफ़ी नहीं है कि वो 3 कबीलों का सरदार है। इसका मकाम शुजात के अलावा भी बुलंद होना चाहिए। बेशक फिजारू और जार मैंने एक ज़ुबान होकर कहा, मुअज़्ज़ज़ लोगों, बस ये लाजिम है कि कबीले की बेशतर जिम्मेदारियां वो अपने नायबीन को सौंप दे और खुद हुसूल इल्म और देवताओं की नज़र में अपना मर्तबा बाला करने के लिए बस्ती से दूर जंगलों में चला जाए। मैंने कहा, फिजारू और ज़ारमे को मेरे तखातुब की तब्दीली पर हैरत हुई होगी। उन्होंने सर झुका दिए और फिर इताअत और फर्माबरदारी की अलामत के तौर पर ज़मीन पर लेट गए।
मैं जो कहता हूँ इसे अपने कानों में महफूज कर लो। मैं तुम दोनों को अमानतन तोरी की नियाबत दे रहा हूँ। शोइल्ला के कबीले की नियाबत और दोबारा आबाद कारी ज़ारमे के सुपुर्द की जाती है और मेरे कबीले का नायब फिजारू है। कबीले में ऐसी हदबंदियां खत्म कर दी जाएं जो शोइल्ला और कालारी के ज़माने में थीं। ज़मीन और आबादी निस्फ निस्फ तकसीम कर ली जाए। मैं नहीं तोरी में मौजूद रहूंगा और तुम दोनों के काम का जायजा लेता रहूंगा, लेकिन कबीले के फैसले, इंतजामी उमूर, ग़िज़ा और पनाह के मामलात तुम दोनों को इस वक्त तक संभाले रखने होंगे जब तक मैं खुद ये उमूर अपनी निगरानी में ना ले लूं। कबीले की हर नौजवान लड़की सबसे पहले मेरे मुलाहजा के लिए पेश की जाएगी। मेरे इस जुमले पर उन्होंने हैरत से सर उठाकर देखा, लेकिन मैंने अपने अहकाम जारी रखे। तुम अहम मामलात में किसी भी वक्त अपने सरदार से मशवरा कर सकते हो। तुम जानते हो जाबिर बिन यूसुफ ने यह मकाम किस तौर पर हासिल किया है। तुम्हें मालूम है कि इसके पास कैसे कैसे नादिर तहाइफ मौजूद है, और तुम इस अमर से भी वाकिफ होगे कि इस मुकद्दस अकुबला की खुशनुदी हासिल है। सरकशी और साजिश की सज़ा बहुत शदीद हो सकती है। मैंने शिपली ज़ारमे के जिस्म पर फेंक दी। वो तड़प कर ज़मीन पर लौटने लगा। इसकी कमर में एक बड़ा दाग पड़ चुका था। मुकद्दस चोबी अजदहा मुतहर्रिक करके मैंने फिजारू की तरफ रवाना कर दिया। वो फिजारू के जिस्म पर रेंगने लगा और फिजारू खौफ व हरास के आलम में ज़ारमे का इत्तिबा करने लगा। फिर अजदहा शिपली मुंह में ले आया और मेरे गिले में लटक कर दोबारा साकित हो गया। मैंने इन दोनों को खड़े होने का हुक्म दिया। तुमने देखा? हाँ जाबिर बिन यूसुफ, ए मुकद्दस सरदार। ज़ार मैंने एहतराम से कहा, तुम्हें अपने नवादिर को ज़हमत देने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा मकाम हमारे क़ल्ब में कंदा है। हम तुम्हारा बेहतरीन हथियार साबित होंगे। फिजारू ने भी इसी किस्म के कुछ जुमले अदा किए। सरंगा की नौजवान लड़की सरीता इसी मकान में रहेगी और तुम दोनों उसकी ख्वाहिश मुकद्दम समझोगे। इसके लिए बेहतरीन ग़िज़ाएँ और खादमाएँ मुहैया करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। दोनों ने दोबारा रिवायती तौर पर इताअत का मुज़ाहरा किया। उन्हें वापसी का हुक्म देकर मैं सरीता के कमरे में आया। इसके बदन पर तोरी की लालकियां जड़ी बूटियों के तेल से मालिश कर रही थीं। अच्छी खुराक और मुसलसल आराम के बाइस सरीता का हसन निखर आया था। आइंदा 2 दिनों में शोइल्ला के कबीले से आए हुए लोग अपने इलाके में मुंतकिल होने लगे। उनकी मुंतखब लड़कियां मेरे मुलाहजे के लिए पेश की जाती हैं। मैंने चंद मियारी दोशीज़ाए अलहदा करके बाकी लड़कियां ज़ारमे और फिजारू के सुपुर्द कर दे। 2 दिनों तक आतो में नरमस के साथ रहा, अपनी सियाफाम खादमाओं के साथ। मैंने अपने कबीले की चीदा लड़कियां अपने लिए वक्फ कर ले। मेरा मकान उन 2 दिनों में औरतों से भरा रहा। सरीता खामोशी से ये तग़य्युर देख रही थी। 2 दिनों की कसलमंदी के बाद में काहिन आज़म समोराल की खिदमत में हाजिर हुआ और इसे अपने फैसले से मतला किया कि मैं जजीरा तोरी के दोनों कबीलों के लिए नायब मुकर्रर करके इसके पास हुसूल इल्म के लिए आया हूँ। मैंने मशल की लो में दाएं हाथ की छूटी उंगली जलाकर अहद किया कि मैं हमेशा इसका वफादार और मुती रहूंगा। मैंने कहा, ये सब मुकद्दस अकुबला की बारगाह में रसाई हासिल करने और अपनी कुव्वत व अज़मत बढ़ाने का अक़दाम है। मेरी आमद से काहिन आज़म की मुख की चमक बढ़ गई और उसने शफ़क़त से मेरे सर के बाल खींच लिए। मैंने फ़ौर इग़ार से बाहर जाकर एक हिरन शिकार किया और उसकी खाल उधेड़ कर अरबी जायके का गोश्त भून कर समोराल को खिलाया। मुझे मालूम था ये इसकी मरगूब ग़िज़ा है। वो मुझे गार के एक तारीक गोशे में ले गया और किसी खूह से इसने पत्थर का एक बर्तन निकालकर उसका महलूल मेरे जिस्म पर उंडेल दिया। कायक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे महलूल मेरे मसामों में दाखिल हो रहा है। मुझ पर एक नशा आवर कैफियत तारी हो गई और मैंने नशे की हालत में समोराल से अपनी बेपनाह अक़ीदत का इजहार किया। तारीक बर्रे आज़म में अपने अज़ाइम बनाए और अकुबला की बारगाह में पहुंचने के बड़े बड़े दावे किए। ये पहला दिन था कि रस्मी तौर पर समोराल ने मुझे शागिर्द की हैसियत से कबूल कर लिया। सबसे पहले इसने मुझे एक असा का तिलिस्मी वजीफ़ा बताया और मुक़द्दस जारा का की तारीफ़ और तौसीफ़ का एक मुरक्कब जुमला रटाया, जिसे हिफ्ज़ करने में मुझे खासी दीगर लगी, इसलिए कि इसकी ज़ुबान मेरे फ़हम से बाला थी। इस जुमले की मुसलसल अदाई का एजाज़ था कि तिलिस्मी कड़िया पर मुझे दस्तरस हो गई। इस वक्त काहिन आज़म फयाज़ी पर उतर आया था। मैंने कड़िया के नीचे आग जलाकर समोराल का मखसूस सुफूफ तेल में डालकर कोशिश की कि सरंगा को देख लूं, लेकिन सरंगा नजर नहीं आया। फिर मैंने अपने मकान में सरीता को देखना चाहा, मुझे कामयाबी हुई। सरीता का बदन बिखरा हुआ था। वो पयाल के बिस्तर पर दराज थी और कुछ सोच रही थी। मैंने इसे जी भर के देखा, वो बड़ी उदास मालूम होती थी। इस मंजर से मेरी तबीयत में बेचैनी पैदा हो गई।
फिर मैंने जार में फिजारू की मसरूफियात देखें। कबीले में तेजी से काम हो रहा था। फिर अचानक मुझे डॉक्टर जवाद का ख्याल आया। शोइल्ला और मेरे मुकाबले से एक दिन पेशतर वो मुझे जहरीली बूटी खुलाकर गायब हो गया। मैंने तेल की सतह पर इसे एक गार में बैठा देखा। दिकट्टर का चेहरा आते ही मेरे मुंह से झाग आ गए। मैंने वहीं खड़े खड़े फुंकार मारी। क्या हुआ? काहिन आजम मुझसे बोला। वो दौड़ बैठा गोश्त से शगल कर रहा था। कुछ नहीं। वो तबीब जवाद नजर आ गया था। मैंने लड़खड़ाती जुबान से कहा, क्या तुम्हें इसका सर दरकार है? काहिन आजम ने कहा, नहीं, वो इतना अहम शख्स नहीं। मैं तिलिस्मी कड़िया से हिट आया और मैंने समोराल की खुशामद की कि वो मुझे जल्द अज जल्द अपने सारे उलूम मुंतकिल कर दे। रात के वक्त में उसके गार से चला आया। मेरी नस नस में एक अजीब खुमार छाया हुआ था। मैं पत्थर रास्ते से हटाता गिर जता और चीनी बस्ती की तरफ बढ़ रहा था। बस्ती में मेरी आमद से हलचल मच गई। मैंने फिजारू को हुक्म दिया कि सुबह तक डॉक्टर जवाद को मेरे मकान पर हाजिर किया जाए। मैंने इसका पता बताया और मकान में दाखिल होकर नरमस को आवाज दी। वो आ गई। सुबह सादिक के वक्त मेरे दरवाजे पर फिजारू और जार में मौजूद थे। उनके पीछे जार में के जवानों के वस्त में डॉक्टर जवाद खड़ा था। मुझे तारीख बर्रे आजम के दस्तूर का इल्म था कि तबीबों को वहां खास मुराद हासिल है। डॉक्टर जवाद पर किसी जमाने में एक इकाबो तैनात था। अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो जाता तो हालात कुछ और होते। मुहज़्ज़िब दुनिया का ये शख्स मेरा साथी, ये बदनसीब मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था। अगर मैं इसके जहर से मर जाता तो सरंगा और सरिता को भी मौत का जाम नोश करना पड़ता। जवाद मुजरिमों की तरह जमीन की तरफ नजरें झुकाए खड़ा था। मेरे सिर्फ एक इशारे पर नेज़ों से इसका जिस्म छलनी हो सकता था। सरिता भी बाहर आ गई थी और हिकारत से इस बेगैरत शख्स को देख रही थी। डॉक्टर जवाद की गिरफ्तारी की इत्तला मिलते ही नरमज रुखसत हो गई थी। मैं सोच रहा था कि अपने गुस्से का इजहार किस तरह करूं। डॉक्टर जवाद, क्या तुझे अब भी किसी रियायत की तवक्को है? मुझे अपनी गलती का एतराफ है सैयदी, इसने खिजालत से कहा। फिरौन बेसामा तो इसे गलती कहता है? ये कमिंगी है सैयदी जाबुरा, ये कम ज़र्फी है। वो मुर्दा आवाज में बोला, आह, सारे इल्जाम तेरे लिए हेच हैं। तो यकीनन एक अरब नहीं है। तेरे खून में खराबी है। मैंने लरस कर कहा, तुम्हारी हर गाली मुझ पर बजती है। फैसले में देर ना की जाए, मुझे सजाए मौत दी जाए, मौत। मैंने तहकीर आमेज लहजे में कहा, ए बदबख्त शख्स, तूने अपने लिए कितनी आसान सजा तजवीज़ की है। मैं हर सजा के लिए तैयार हूं। मैंने तुम्हारे एतमाद को धोखा दिया है सैयदी जाबिर। अब कोई नदामत मेरी गलती का तदराक नहीं कर सकती। डॉक्टर जवाद, क्या तेरा दिमाग अभी तक ठीक नहीं हुआ? तुझे मालूम है कि तेरे साथी ने जजीरा तोरी में कितनी मंजिलें सर कर ली हैं। मुकद्दस अकुबला की नज़रों में इसका मकाम किया है। क्या तूने मेरे सीने पर नज़र नहीं डाली थी? तो इस हकीकत से बाखबर नहीं था कि मैं कितनी बार मौत के मुंह में गया हूँगा। तूने मेरी इकबाल मंदी मसनूई समझी थी। मुझे हकायक का इल्म था सैयदी, लेकिन मैं तुम्हें बतूने सकता कि मैंने ऐसा क्यों किया था। तुमने ये तमाम फतूहात तारीख बर्रे आज़म की अजीम अलशान मलिका अकुबला के लिए की हैं और मैंने। जवाद कुछ कहते कहते रुक गया। मैंने डपट कर कहा, खामोश क्यों हो गया? साफ क्यों नहीं कहता कि तो अपने एक साथी की दरख्शानी से नाखुश था? तो हासिद है, ये गलत है सैयदी, लेकिन मेरी बिसात उलट चुकी है। अब किसी जरा की जरूरत नहीं है। मैं अपनी वकालत नहीं कर रहा हूं, मैं सजा का मुंतजिर हूं। डॉक्टर जवाद ने बेखूफी से कहा, नहीं डॉक्टर। मैंने गजब में कहा, मैं तेरी जुबान से वो नुक्ता उगलवाना चाहता हूं जिसने तुझे अक्ल होश से बेगाना कर दिया था। इसने खामोशी गनीमत समझी, लेकिन इस खामोशी ने मेरे कब्र में और इजाफा कर दिया। मैंने चीख कर अपना सवाल धुरा। जल्दबाजी में कोई फैसला करना दानिशमंदी के मुनाफी था, क्योंकि अकुबला इस पर मेहरबान रह चुकी थी। मैं उन नपे तले नेज़ों को हरकत का हुक्म दे सकता था जो इसे निशाने पर लिए हुए थे, मगर मैंने ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया। मैंने डॉक्टर जवाद के लिए किसी अंधेरे गार में कैद तन्हाई की सजा का इरादा कर लिया। फिर मैं इस खबीस को सजा सुनाने का ऐलान करने ही वाला था कि खिलाफ मामूल दूर से सरंगा आता दिखाई दिया। वो तेज कदमों से आ रहा था। मोहतरम सरंगा, तुम अचानक कैसे आ गए?
मैंने इसे खुश आमदीद कहते हुए कहा, ज़रा ठहरो, मैं इस वक्त एक मुकदमे का फैसला कर रहा हूँ। सरंगा, क्या तुम अपने इस महज़िब साथ को पहचानते हो? मैं इसी के सिलसिले में गार से अलिफाटे कर आया हूँ। सरंगा ने आहिस्तगी से कहा, मेरे साथ अंदर चलो। क्या तुम उसकी सिफारिश करने आए हो?